सर वॉइस इज क्लियर, वेरी गुड। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। तो हमारा लेक्चर है आज, दिस इज लेक्चर 2 ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे मेनली यूज पीरियोडिक टेबल। इसमें हम डिस्कस करेंगे मेनली यूज पीरियोडिक टेबल को। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेनली यूज पीरियोडिक टेबल को, बिकॉज कल ना मैं रिकॉर्ड कर सका इस लेक्चर को। तो डिस्कस करते हैं मेनली यूज पीरियोडिक टेबल, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्या कर रहे हो भाई आप? So let us start our topic, periodic classification of elements. This is lecture 0.2 class 10th. Topic is mainly use periodic table. So let us start the discussion of the class. So over here we'll discuss Mendeleev periodic table. तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखूंगा एमपीटी, सो दैट टाइम कैन बी सेव्ड। शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं लिखूंगा एमपीटी, मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको एमपीटी लिखूंगा। I'll write over here एमपीटी। तो मेंडलीव भाई साहब ने क्या किया, पीरियोडिक अपना पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए ही फॉर्मुलेटेड अ लॉ, दैट लॉ इज नोन एज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। He formulated a law, that law is known as Mendeleev periodic law. That law is known as Mendeleev periodic law. Mendeleev periodic law. Now what does this law state? What does the Mendeleev periodic law state? The law state is that the physical and chemical properties, the physical and chemical properties, physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic mass, or periodic functions of their atomic mass, This is a statement of the law of their atomic mass. The physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic mass. The term over here, what does the term periodic functions mean over here? Periodic functions means gradual increase. Periodic functions means जो properties हैं, they get repeated after certain regular intervals. So what is meant over here by the term periodic function? तो periodic function का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर हम डिस्कस करेंगे what is meant by the term periodic function over here, तो periodic function का मतलब है पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज। So after certain fixed atomic mass number, properties get repeated. This is the basis of Mendeleev's periodic law. So atomic mass is the basis of Mendeleev's periodic law. So we can write over here the basis of Mendeleev's periodic table is, or Mendeleev's periodic law is, the basis of Mendeleev's periodic law is, Mendeleev's periodic law is atomic mass. So atomic mass is the basis of Mendeleev's periodic law. Remember this point, it is very important. It may be asked in any competitive exam. The basis of Mendeleev's periodic law or periodic table is atomic mass. Now let us see how Mendeleev formulated his periodic table. So MPT को कैसे बनाया Mendeleev ने? Now let us see how MPT was formulated by Mendeleev, modern periodic table. तो जो हमारे पास Mendeleev's periodic table, जो हमारे पास Mendeleev's periodic table है, Mendeleev ने अपने periodic table को Mendeleev
divided his periodic table, Mendeleev divided his periodic table, Mendeleev divided his periodic table into 7 horizontal rows, which were known as periods. तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए. These were known as periods, उनको हम periods कहते हैं. And 8 vertical columns and 8 vertical columns and 8 vertical columns and these are known as groups. तो जो हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे हम एक बात मेंशन करेंगे. जो हमारे पास एमपीटी है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, उसमें हमारे पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, उनको हम पीरियड्स कहते हैं. और हमारे पास 8 वर्टिकल ग्रुप्स हैं, 8 वर्टिकल कॉलम्स है, उनको हम ग्रुप्स कहते हैं. देयर आर 8 कॉलम्स, उनको हम ग्रुप्स कहते हैं. तो ओरिजिनली मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे. नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, further one more group was added. Further one more group was added. One more group was added after the discovery of noble gases. After the discovery of noble gases, one more group was added. So one is the noble gases were discovered. Noble gases we have helium, we have neon, we have argon, we have krypton, we have xenon, we have radon. These are the noble gases. Once these noble gases were discovered, तो मेंडलीव ने एक और ग्रुप ऐड किया. मेंडलीव ने एक और ग्रुप अपने पीरियोडिक टेबल में ऐड किया, उसको कहा गया जीरो ग्रुप. दैट इज ग्रुप 8, दैट इज ग्रुप 9, उसको कहा गया जीरो ग्रुप. उसको मेंडलीव ने रिप्रेजेंट किया एज जीरो ग्रुप. और इस पीरियोडिक टेबल को हम कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. सो दिस इज मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडिफाइड एमपीटी है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. तो उसमें 7 पीरियड्स हैं, बट देयर आर नॉट 8 ग्रुप्स, देयर आर 9 ग्रुप्स. द 9th ग्रुप इज जीरो ग्रुप, जिसको मेंडलीव ने नोबल गैसेस, जिसमें मेंडलीव ने नोबल गैसेस को फिल किया. दैट इज द 9th ग्रुप, दैट्स कॉल्ड जीरो ग्रुप. आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली 7 पीरियड्स, 8 ग्रुप्स थे, लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस वन मोर ग्रुप वाज एडेड ओवर हियर, that is known as zero group. And then the periodic table was modified and it was known as modified Mendeleev's periodic table. So modified Mendeleev's periodic table में 7 periods और 9 groups हैं. The number third important point is, in Mendeleev's periodic table in MPT, each group was divided into two subgroups. Each group was divided into 2 subgroups. तो MPT में हर कोई ग्रुप डिवाइड किया गया into 2 subgroups. उन सबग्रुप्स को हम जानते हैं ऐसे, they were named as subgroup A and subgroup B and subgroup B. So Mendeleev's periodic table में जितने भी हमारे पास ग्रुप्स थे, उनको डिवाइड किया गया into 2 subgroups, that is subgroup A and subgroup B. तो देखेंगे सबग्रुप A और सबग्रुप B क्या होते हैं. Now see over here, यहाँ पे मैं ग्रुप्स बनाऊंगा, यहाँ पे मैं ग्रुप्स बनाऊंगा. These are the groups in the MPT. तो MPT में बेसिकली हमारे पास कितने ग्रुप्स थे? बेसिकली हमारे पास 8 ग्रुप्स थे. One more group was added after the discovery of noble gases. Let this is group first, इसको मैं group first कहूँगा. And let this is group second.
and this is group third. This over here is group fourth. This is group fifth. This is group sixth. This is group sixth. This is group seventh, and this is group eighth. We have over here these groups. तो हमारे पास यहाँ पे ये ग्रुप है. हर एक ग्रुप को it was divided into two सब ग्रुप्स. तो यहाँ पे इसको दो सब ग्रुप किए गए, सब ग्रुप A एंड सब ग्रुप B. सिमिलरली यहाँ पे दो सब ग्रुप किए गए, सब ग्रुप A और सब ग्रुप B. यहाँ पे दो सब ग्रुप A और सब ग्रुप B. यहाँ पे दो सब ग्रुप A और सब ग्रुप B. यहाँ पे भी दो सब ग्रुप A और सब ग्रुप B. यहाँ पे भी दो सब ग्रुप A एंड सब ग्रुप B. सिमिलरली ग्रुप सेवंथ में दो सब ग्रुप A और सब ग्रुप B. एंड ग्रुप एट्थ में उसने तीन एलिमेंट्स को प्लेस किया. 3 elements were placed in group 8th, that's iron, cobalt, nickel. These elements were placed in group 8th. This point is important over here. तो सब ग्रुप A जो हमारे पास थे, ये वाला A है, ये वाला A है. जो हमारे पास सब ग्रुप A है, they contain normal elements. Subgroup A contains normal elements. Now what are normal elements? Normal elements हम S और P block elements को कहते हैं. That's S and P block elements. That's S and P block elements. Now you might not be familiar nowadays what are S and P block elements. जब हम modern periodic table को discuss करेंगे, वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा S block elements कौन से हैं, P block elements कौन से. तो S and P block element जो होते हैं, they fall into subgroup A. और subgroup B में transition elements को रखा गया. Transition elements were placed in subgroup B. तो subgroup A में normal elements, that's elements of S and P block were placed, and subgroup B में ट्रांजिशन एलिमेंट, सब ग्रुप बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया. ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सब ब्लॉक उसको डिस्कस करूंगा इसी चैप्टर में. सारे ब्लॉक्स को हम डिस्कस करेंगे. पूरी कहानी पीरियोडिक टेबल की हम डिस्कस करेंगे. पूरी कहानी हम पीरियोडिक टेबल की डिस्कस करेंगे. ना उसके बाद हम दिस इज मॉडर्न एमपीटी. तो ये हमारे पास है मॉडर्न एमपीटी. और यहाँ पे एक और ग्रुप ऐड किया गया, दैट वाज नोन एज जीरो ग्रुप आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल केसेस. तो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एमपीटी. बोर्ड एग्जाम्स में आता है 10th में ये वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एमपीटी. सो एडवांटेजेस ऑफ एमपीटी, advantages of MPT, Mendeleev's periodic table. Over here it is Mendeleev's periodic table, not modern periodic table. So the advantages of MPT. What are the advantages of MPT? Now our first advantage is, it was the first time that a tabular form of periodic table was divided. Mendeleev was the first who devised a tabular form of periodic table. Therefore, collective study of all the elements was made possible by MPT. तो लोथरमायर में कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी? लोथरमायर में कलेक्टिव स्टडी की प्रॉब्लम आ रही थी. जब हमने लोथरमायर को कल डिस्कस किया, उसमें कलेक्टिव स्टडी ऑफ एलिमेंट की प्रॉब्लम आ रही थी. तो इसमें कलेक्टिव स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, कलेक्टिव स्टडी ऑफ, नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन आप लिखो, एडवांटेज आप लिखो, कलेक्टिव स्टडी ऑफ all the elements was made possible. Collective study of all the elements was made possible by MPT, by Mendeleev's periodic table. तो ये बात आपको समझ में आई, कलेक्टिव स्टडी क्यों पॉसिबल हो गई? बिकॉज हमारे पास अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स अलग है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज अलग होगी. हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स अलग है, उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी. हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलग है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी ऑलमोस्ट.
Therefore, collective study of all the elements was made possible by MPT. Now, number second important application or advantage of Mendeleev's periodic table. Elements with similar properties were placed in similar groups. Elements with similar properties. Elements with similar properties were placed in similar groups. Were placed in similar groups. तो जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टी थी वो एलिमेंट एक ही ग्रुप में रखे गए, सिमिलर ग्रुप में रखे गए, and it was easy to predict and compare their properties. Hence it became easy, and it was easy, and it was easy to predict. तो उनकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट करना बहुत इजी हो गया. प्रिडिक्ट एंड कंपेयर देयर प्रॉपर्टीज. And compare their properties. For example, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिस्कशन दूंगा, अदरवाइज हमें ये आगे आगे क्लास में करना है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ग्रुप है, इस ग्रुप में मैंने अल्कली मेटल्स को रखा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. मैं इनकी एक प्रॉपर्टी चेक करूंगा. फॉर एग्जाम्पल मैं इनको ट्रीट करूंगा वाटर के साथ. तो लिथियम वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाता है LiOH. सोडियम भी हाइड्रोक्साइड बनाता है NaOH. तो पोटेशियम भी हाइड्रोक्साइड बनाता है KOH. रुबीडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है RbOH. सीजियम हाइड्रोक्साइड बनाता है CSOH. ऑल दीज हाइड्रोक्साइड्स बिकॉज दे कंटेन OH आयन, दे आर बेसिस. डिस्कस करेंगे एसिड बेस का, एसिड बेस केमिस्ट्री में. सो इनकी ये प्रॉपर्टी सेम है. दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स. ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स दे आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप. दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द टाइप MOH, where M is your alkali metal, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. That's what I have written over here. Elements with similar properties were placed in similar groups, and it was easy to predict and compare their properties. Now, number third advantage of MPT. The most important advantage is that he predicted the properties of some elements which were not discovered at that time. He predicted the properties of some elements. This is the most important application advantage. Most important advantage. He predicted the properties of some elements. Properties of some elements which were not discovered at that time. Which were not discovered at that time. So these elements were not discovered at that time. At that time, he predicted properties of some elements which were not discovered at that time and left gaps in the periodic table. And left gaps in the periodic table. उनके लिए उसने एक periodic table में गैप रखी and left gaps in the periodic table. In the periodic table. Now let us see which were the elements. कौन-कौन से elements थे जिनको उन्होंने, जिनकी properties मेंडलीव ने डिस्कस की लेकिन वो डिस्कवर नहीं हुए थे. So the elements are, उसने उनका नाम भी दे दिया. Elements was Ica aluminum. Ica aluminum. Ica aluminum. आज के पीरियोडिक टेबल में इसको गैलियम कहते हैं. गैलियम. आज के पीरियोडिक टेबल में इसको गैलियम कहते हैं. आज के पीरियोडिक टेबल में इसको गैलियम कहते हैं. इक्का वर्ड मीन्स आफ्टर. After aluminum means in the near future an element will be discovered. For example, यहाँ हमारा बोरान है, यहाँ हमारा एल्युमिनियम है. तो यहाँ पे मेंडलीव ने एक जगह खाली छोड़ दी और इसकी प्रॉपर्टीज बताई कि एलिमेंट एक डिस्कवर होगा, वो एलिमेंट यहाँ पे आएगा और उसका नाम दिया इका एल्युमिनियम. ना इका मीन्स आफ्टर, दैट इज एन एलिमेंट विल बी डिस्कवर्ड आफ्टर एल्युमिनियम. तो आज के पीरियोडिक टेबल में जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ
तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में it was found that this element is gallium and it exactly lies below it lies below aluminum, means it is after aluminum, its placement is after aluminum and its properties resemble that of the aluminum. So this was the main advantage of Mendeleev's periodic table. This was the main advantage of Mendeleev's periodic table. इक्का सिलिकॉन इक्का बोरान, ये अभी डिस्कस करेंगे उनको. तो दिस वाज द मेन एडवांटेज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. उसने गैप्स रखे अपने पीरियोडिक टेबल में और उसने कहा इन द आने वाले जमाने में एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इन गैप्स में, और इनका नाम भी दे दिया गया. फॉर एग्जांपल इक्का एल्युमिनियम उसने डिस्कवर किया, उसका नाम रखा उसने इक्का एल्युमिनियम. इक्का मींस आफ्टर एल्युमिनियम. तो आज के पीरियोडिक टेबल में ये जो इक्का एल्युमिनियम है इट इज गैलियम. तो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है which of the following element is known as इक्का एल्युमिनियम, so it is gallium over here. So it is, क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? So it is gallium over here. क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? नंबर सेकंड इज इक्का सिलिकॉन. इक्का सिलिकॉन, तो इक्का सिलिकॉन मीन्स आफ्टर सिलिकॉन. तो सिलिकॉन के बाद जो हमारा एलिमेंट आता है आज के जमाने में इसको जर्मीनियम कहते हैं. जर्मीनियम, जीई. आप कोई टेंशन मत लो, मैं आपको पीरियोडिक टेबल आने वाले 2-4 लेक्चर्स में पूरा याद कराऊंगा. आपको पता चलेगा ये जर्मीनियम कहाँ पे फॉल करता है. सिमिलरली इक्का बोरान. इक्का बोरान मीन्स बोरान के बाद आफ्टर बोरान कौन सा एलिमेंट आता है आज के जमाने में? स्कैडियम इसको कहते हैं. स्कैडियम, Sc इसका सिंबल है. Sc इसका सिंबल है. स्कैडियम इसको कहते हैं और Sc इसका सिंबल है. Sc. एंड वन मोर इज दैट्स इक्का मैग्नीज. वन मोर इज इक्का मैग्नीज मीन्स आफ्टर मैग्नीज. नाउ इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारा आज का पीरियोडिक टेबल है ये एलिमेंट है टेक्नीशियम. दिस एलिमेंट इज टेक्नीशियम Tc. So these were certain elements. These are the 4 important elements जो उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे लेकिन मेंडलीव ने एक गैप रखी वहां पे और इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की और एग्जैक्टली वही पोजीशन है, वही पोजीशन पे ये एलिमेंट्स लेटर ऑन पाए गए. These elements were found exactly below exactly the places where Mendeleev had predicted them. तो मेंडलीव ने जैसे जहां प्रिडिक्ट किया था ये एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे और इनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी. So this is very important. This is the most important advantage of Mendeleev's periodic table. Most important advantage of Mendeleev's periodic table. Fourth advantage is he corrected the atomic masses of certain elements. He corrected the atomic masses of certain elements. For example, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, अभी आपको नहीं आएगा कैसे करेक्ट करना है बिकॉज ये आपको पहले पढ़ना है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, मोल कंसेप्ट ऑफ बाकी चीज एटॉमिक वेट वैलेंसी. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा किसको उसने करेक्ट किया था, बेरिलियम. तो बेरिलियम का एटॉमिक वेट बिफोर मेंडलीव था 13.5, एटॉमिक मास था 13.5 एंड एटॉमिक नंबर बेरिलियम का हमें एटॉमिक मास करेक्ट करना है. दिस इज एटॉमिक मास बिफोर मेंडलीव इट वाज 13.5. नाउ दिस इज बिफोर मेंडलीव. लेकिन आफ्टर मेंडलीव जब मेंडलीव ने इसको करेक्ट किया देन इट्स एटॉमिक मास वाज फाउंड टू बी 9 एंड दिस इज एक्जैक्टली व्हाट इट इज. So he corrected the atomic masses of certain elements. And before Mendeleev इसकी वैलेंसी थी and after Mendeleev इसकी वैलेंसी 2 है. अगर हम इसको चेक करेंगे आगे जब वैलेंसी हम डिस्कस करेंगे तो you'll find that its valency is 2 not 3 and you'll find that its atomic mass is 9 not it is not 13.5. So before Mendeleev and after Mendeleev की बात हो रही है यहाँ पे, before Mendeleev और after Mendeleev की बात हो रही है. So the discussion is of before Mendeleev और after Mendeleev. तो Mendeleev ने atomic masses of certain elements उसको
उनको उसने करेक्ट किया. फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम बिफोर मेंडलीव इट वाज 13.5 एंड आफ्टर मेंडलीव after the correction it was found to be 9. That's what it is nowadays. It is 9 and the valency before Mendeleev it was 3. तो valency यहाँ पे 3 थी before Mendeleev. Valency was 3 and after Mendeleev the valency is 2. तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे disadvantages of Mendeleev's periodic table. Means limitations of Mendeleev's periodic table. Limitations we can't say failures because उसने इतना contribution दिया, failure नहीं कह सकते हैं. Limitations of MPT Mendeleev's periodic table. The first most limitation is that Mendeleev's periodic table जो है MPT, so you know that it is based upon the concept of atomic mass. Atomic mass. तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं आइसोटोप्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन H11 है, हाइड्रोजन H12 है, हाइड्रोजन H13 है. These are the isotopes. They are having same atomic number. This is the atomic number. Atomic number हम नीचे लिखते हैं bottom subscript में. And this is the mass number. ऊपर जो लिखते हैं इसको mass number कहते हैं. इसको mass number कहते हैं. This is mass number. And this is atomic number. ये हमारे पास atomic number है. जो एलिमेंट्स जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है. जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक 1 सेकंड, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है. जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं. उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं. हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, these elements are called isotopes. इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं. Now अगर हमारा Mendeleev's periodic table जो है that is based on the concept of atomic mass, therefore H11 it has different atomic mass, it has different atomic mass, it has different atomic mass. Means जो हमारा हाइड्रोजन है it should be placed at 3 positions in the periodic table. हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में 3 जगह होना चाहिए बिकॉज इसकी मास डिफरेंट है. Mendeleev's periodic table is based on atomic mass. तो एटॉमिक मास अगर डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए. लेकिन हमारा हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में 3 डिफरेंट जगह पर नहीं है. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है. अगर मास नंबर डिफरेंट है, therefore they should have been placed in different positions in periodic table, in Mendeleev's periodic table. Why? Because Mendeleev's periodic table is based on the concept of atomic mass. तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं. तो हाइड्रोजन के अगर 3 आइसोटोप्स हैं, इस हाइड्रोजन के हमारे पास 3 पोजीशंस पीरियोडिक टेबल में होने चाहिए, बट दैट इज नॉट द केस. There should have been 3 position, anomalous position of hydrogen. वो तो अलग पढ़ेंगे ना हम, anomalous position of hydrogen. That's a separate discussion. There should, ये हाइड्रोजन की बात नहीं है. Let us take oxygen. Oxygen 16, oxygen 18, oxygen 17. 3 isotopes. Atomic number 8, atomic number 8, atomic number 8. इसका मास 16 है, इसका मास 18 है, इसका मास 17 है. So there should have been 3 oxygen atoms in the periodic table because inka mass different hai. Therefore, the concept of atomic mass was wrong in Mendeleev's periodic table. The only thing that was wrong in Mendeleev's periodic table was the concept of atomic mass. Isotope को हमने different positions नहीं दी in Mendeleev's periodic table. This is the drawback. So this is the first drawback. नेक्स्ट ड्रॉबैक जो है उनको हम कल डिस्कस करेंगे. हम अपना लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करेंगे. हम अपना लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करेंगे. क्या आपको आज का लेक्चर समझ में आया? नॉट टेल मी गाइस, पहले क्या आपको ये लेक्चर समझ में आया? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? इज एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम विद दिस लेक्चर? क्या किसी को कुछ समझ नहीं आया कहीं पे? देन मैं डाउट क्लियर करूंगा. आप मुझे बताओ. Is anybody having any doubt in this lecture? Now tell me over here.
नो सर, जी सर, कहाँ पे? अच्छा जी सर उसका है। नो सर, नो डाउट सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सानिया, क्या आपको बात समझ में आ गई? सानिया जी, क्या आपको बात समझ में आ गई? ये कौन है 112233? अरे यार, नाम भी लिखा करो ना। 112233, ये तो कोड है ना शायद इसका। क्रिस्टल करियर, वेरी गुड, वेरी गुड, आजम। आजम, आजम। अच्छा आजम जी, आपको बात समझ में आ गई? कौसर, कौसर, आपको बात समझ में आ गई? हाँ सर, आपको बात समझ में आ गई? जी सर, ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट गाइस। मैं आपको पीरियोडिक टेबल की पूरी माया बता दूंगा, पूरी कहानी बता दूंगा, बस यू हैव टू बियर मी फॉर 8 to 10 लेक्चर्स इन पीरियोडिक टेबल। वन क्वेश्चन बताओ, कौन सा क्वेश्चन है? कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, इट्स नॉट इस टॉपिक से, कहीं से भी केमिस्ट्री में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मुझे बता कौन सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? ऑक्सीजन है वन मास ओनली 16। नहीं यार, ऑक्सीजन के पास भी आइसोटोप्स होते हैं। ऑक्सीजन के पास आइसोटोप्स होते हैं। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 19। अब क्या होता है, जो आइसोटोप ज्यादा एबंडेंट होता है यूनिवर्स में, उस आइसोटोप की हम बात करते हैं। ऑक्सीजन 16 इज मोस्ट एबंडेंट। जैसे हमारे पास H11 प्रोटियम मोस्ट एबंडेंट है, जैसे हमारे पास कार्बन 12 मोस्ट एबंडेंट है। कार्बन के आइसोटोप से कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, बट कार्बन 12 इज मोस्ट एबंडेंट। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन के हमारे पास दो आइसोटोप्स है। कौन कौन से आइसोटोप है? क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। तो मोस्ट एबंडेंट जो है उसी को हम पीरियोडिक टेबल में रखते हैं, या इनका एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। आइसोटोप के केस में हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा हाउ वी कैन डिटरमाइन दैट एवरेज एटॉमिक मास। क्या आप क्लियर हो गया? क्या अब क्लियर हो गया? 112233 हो गया क्लियर? यस सर, ओके ओके। So should we stop over here? Should we stop over here? I am going to stop over here. तो आज का क्लास में यहाँ पे खत्म करने जा रहा हूँ। So thanks for being with me and spending your time with me. Thank you. Okay, thank you sir. Okay. And guys, share with your friends. Share with your friends. Share. Once I upload the lecture, जब मैं लेक्चर को अपलोड करूंगा तो YouTube से आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो। जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो। शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट ईच वन कैन बी बेनिफिटेड ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। अरे यार, मीटिंग खत्म हो गई, आप अब आ रहे हो। मीटिंग खत्म हो गई, आप आ रहे हो। रिमेनिंग मीटिंग टाइम